দিল্লীৰ জনতাক গোলাম বনালে বিজেপিয়ে, দিল্লীৰ জনতাক পুতলা সজালে বিজেপিয়ে, দিল্লীৰ জনতা বিজেপিৰ গোলাম হল, দিল্লীৰ জনতা বিজেপিৰ পুতলা হল। বিজেপিয়ে জনতাক কি কৰিলে সেয়া নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। এনেকৈ মন্তব্য আগবঢ়ালে মুকলিকৈ বিজেপিক সমালোচনা কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। পাছে কিয় এনেকৈ মুকলি সমালোচনা কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে? এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশেষ মন্তব্য, দিল্লীৰ জনতাক গোলাম বনালে বিজেপিয়ে, দিল্লীৰ জনতাক পুতলা সজালে বিজেপিয়ে। দিল্লীত গৃহীত হল সেৱা বিধেয়ক, সেৱা বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ লগে লগেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আজিৰ দিনটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা কলা দিন, আজিৰ দিনটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা কলা দিন। দিল্লীৰ জনতাক গোলাম কৰা বিধেয়ক পাছ হ'ল ৰাজ্যসভাত, দিল্লীৰ জনতাক গোলাম সজা বিধেয়ক পাছ হ'ল ৰাজ্যসভাত। ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়ত ভাৰতত এনে ব্যৱস্থা নাছিল। স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লীৰ জনতাৰ স্বাধীনতা কাঢ়িলে। দিল্লীৰ জনতাৰ ভোটৰ এতিয়াৰ পৰা কোনো মূল্য নাই। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, দিল্লী চৰকাৰৰ এতিয়াৰ পৰা কোনো ক্ষমতা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 11 মেত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিল ভাৰত এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, জনতাই নিৰ্বাচিত কৰা চৰকাৰৰ কাম কৰা সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশক আঁতৰাই দিলে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন অধ্যাদেশ লৈ আনিলে মোদী চৰকাৰে আৰু আজি দেশৰ সংসদত ই এক আইন হিচাপে পৰিণত হ'ল। মুকলিকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লী চৰকাৰ এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব উপ ৰাজ্যপাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়কো নামানে বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এই দেশৰ ভৱিষ্যত কি বুলি জনতালৈ প্ৰশ্ন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিক বিজেপিয়ে পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবেই এই কৌশল অৱলম্বন কৰিলে। বিগত 4টা নিৰ্বাচনত আপৰ হাতত বিজেপি বেয়াকৈ পৰাস্ত হৈছে। 25 বছৰতকৈ অধিক সময় দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই। চোৰৰ দৰে দিল্লীৰ শাসন কাঢ়ি নিছে বিজেপিয়ে। বিজেপি দলক চোৰ বুলি আখ্যা দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ জনতাই বিজেপিক নাই বিচৰা, বিজেপিক অগ্ৰাহ্য কৰিছে। সেইবাবে অহংকাৰী হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। দিল্লীৰ ট্ৰান্সফাৰ পষ্টিঙৰ আৰম্ভ কৰি সকলো এতিয়া কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশত হ'ব। কৰ্মচাৰীৰ বদলি পষ্টিং সকলো কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশত হ'ব। 30 বছৰ ধৰি গুজৰাটত বিজেপি চৰকাৰে আছে, কিন্তু গুজৰাটৰ অৱস্থা শোচনীয়। হাৰিয়ানাত বিজেপি চৰকাৰ আছে, কিন্তু হাৰিয়ানাৰ অৱস্থা ভয়ংকৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কটাক্ষ, মণিপুৰতো বিজেপি চৰকাৰ, মণিপুৰ বৰ্তমান জ্বলি আছে। কামত কেজৰিৱালৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে। কেজৰিৱালৰ অপেন চেলেঞ্জ, মুকলি চেলেঞ্জ কেজৰিৱালৰ। কামত মোৰ সৈতে মিলাব নোৱাৰে, ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে কেজৰিৱালে। ৰাজ্যসভাত বিল পাছ হোৱাৰ পাছতেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দিল্লীৰ শাসনভাৰ এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে গুচি গ'ল কেন্দ্ৰৰ হাতলৈ। এই মন্তব্য কেজৰিৱালৰ। মোদী অমিত শ্বাহৰ হাতলৈ গুচি গ'ল দিল্লীৰ শাসনৰ জৰী। দিল্লীৰ জনতা আজিৰ পৰা পুতলা হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লী সেৱা বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পাছতেই কেজৰিৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দিল্লীবাসীৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ গ'ল, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। साबित हुआ आज संसद के आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया।
ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। अब सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली के
दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो, तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है, मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो। मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है। मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी कर